أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ. آؤ یار سنو کچھ سناتا ہوں میں اپنے رب کے نظارے دکھاتا ہوں میں. اس کی نہ ابتدا نہ کوئی انتہا ذرے ذرے کو وہ دیکھتا جانتا اس کا کوئی نہ مولود والد والا لا شریک لہ اکیلا احد. اللہ 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 اللہ. ہر کونے ہر جگہ اس کی ہے قدرت چھائی عالم پہ ہے اس کی رحمت سارا عالم گواہ. اس کی تحریر پر سارے مصروف ہیں اس کی تنظیم پر آسمان زمین کیا نبات و شجر اس نے تو بنائے کہ بر و بحر اس کے محتاج ہے سارے جن و بشر. اس کی طاقت میں ہے آفتاب و قمر. اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمة للناس يا من نظفت قلوبنا الإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من هليت حياتنا بالإيمان يا من في جمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله يومي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا
اللہ. ماشاء اللہ. آئیے اب ہم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے اس دنیا میں جب قدم, رکھا میرے نبی نے اس دنیا میں جب قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جناب صدر, محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں. معزز سامعین, اس کائنات میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں نہ تو ہم نے دیکھا ہے, نہ تو ہماری ان سے کوئی رشتہ داری رہی ہے, نہ ہی ہمیں ان سے کوئی مالیہ جانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی تذکیریں بھی کرتے ہیں. لیکن کیوں ہم ان سے محبت, ان سے عقیدت اور ان کی تذکیریں ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جیسے ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں, ہم حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کے بنا پر کرتے ہیں, ہم نوشیروہ سے محبت کرتے ہیں اس کے عدل و انصاف کے بنا پر. لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے محبت ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کر سکتے ہیں, تو میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ تھی؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے, اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا. میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتی, لیکن بھلے حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول کی سخاوت سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا, دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا, ظاہر کو مالا مال کیا, باطن کو مالا مال کیا, جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی جاری ہے, وہ دنیا میں بھی نوازتا تھا, آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا. میں نوشیروہ کے عدل و انصاف سے انکار تو نہیں کرتی, لیکن بھلے نوشیروہ کا عدل و انصاف میرے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف سے بھلا کیا نسبت رکھتا ہے کہ جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے, اور جس نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہم اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے. کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی, کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی, خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی. میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے, میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے, میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے, میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے. تو آئیے اپنے گہربانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اپنے والدین, اپنی اولاد اور اس دنیا کے لیے اس سے زیادہ محبت تو نہیں, اور اگر ہے تو افسوس کے ساتھ میرے دوست ہمارے ایمان کو خطرہ ہے. میں اور میرے پروردگار نے یہ تک فرما دیا کہ جو رسول تمہیں تھے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو. وہ عرش کا چراغ ہے, میں اس کے قدموں کی دھول ہوں, وہ عرش کا چراغ ہے, میں اس کے قدموں کی دھول ہوں, اے زندگی گواہ رہنا میں بھی غلام رسول ہوں. آخر میں بس ایک ہی بات کہوں گی کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے رگ میں خون نہیں محبت رسول خدا دوڑتی ہے. ہم ہیں اسلام کے بہادر سپاہی, مر جائیں گے پر ایمان کا سودا نہ کریں گے. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائے آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانی یہ محمد, تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانی یہ محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. السلام علیکم. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Munazza Tahrim from Standard 9th and my speech topic is سیرت النبی. ہر ابتدا سے پہلے, ہر ابتدا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے, ہر ابتدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل, دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل, میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. May Allah's blessing and peace be upon him. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the humblest at the zenith of his achievement. If a man's world admired accomplishment and the wealth and fame he has gained do not change him, if he can remain as humble as he was at the beginning of his mission, this shows that person's strength of character, morality, virtue. Despite his unparalleled achievement, which even forced his enemies to place him at the top of greatest man of human history, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was poorer and more humble when he entered Makkah victoriously at the beginning of his mission. Those who saw messenger will always say, one such a face cannot lie. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam practiced with utmost
sincerity and honesty and what he communicated to others. History has witnessed of that did not practice, and what they preached and propagated do not have a large devoted following. Their ideas do not have an enduring effect on the people, and the system they established do not have a large devoted following. However, Prophet Muhammad ﷺ practiced with utmost sincerity and honesty and what he communicated with others. He was always the first one and foremost to obedient his religion in the worship to the Creator and avoidance to the religious prohibition. This shows that person's strength of character. This shows his full conviction toward his cause, and that he was the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala who sent him to teach us the humanity and teach us the true path. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। अंधेरी रात में शम्सुद्दुआ की बात करो, नूर मुस्तफ़ा की बात करो। हजरात, आइए काफ़िला सुगन का रुख करते हैं शहर मदीना की तरफ, जहाँ दिल कसा के पार से यहाँ वहाँ बिखेरने वालों का अज़दाम नहीं है, बल्कि बातें लश्कर जर्रार के रूबरू 313 फिदायान रसूल की सरमस्तियाँ और सब बंदियाँ हैं। चलिए उस रिसालत माब में, जहाँ यूसुफ कना के दीदार से जुलेखा मिस्र की उंगलियां नहीं कटती, बल्कि एक ज़बरदस्त लाए आमाल से जबर तशद्दुद की गर्दनें काट दी जाती है। जहाँ दम ईसा से मुर्दा जिंदा होने के मौजूद नहीं, बल्कि ज़ाब्ता अखलाक से मुर्दा अदियान मिलल में ज़िंदगी की बर्फ दौड़ा दी जाती है। जनाब जामी फरमाते हैं कि 1000 बार बाशुए दहन बादस मुश्के गुलाब नूस सुनामे गुफ्तन बनामे अमाल बेअदबी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर दुनिया के तमाम समंदर के पानी को सिहाई बना दी जाए और दरख्तों को काट कर कलम बना दिया जाए तो भी औसाफ मोहम्मदी का हक अदा नहीं हो सकता। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह उम्र भर नाते पाक लिखते रहे और आखिरी में मिसरा तहरीर करके कलम को रख दिया, इबादत खुदा तू ही किस्सा मुख्तसर। हजरात, आज तारीख के आलम में निराला अजमत वाला दिन है कि इसी रोज़ आलम हस्ती की जात का बास, गर्दिश ललुन्निहार का मतलूब, खल्के आदम का रमूस, कश्ती नूह की हिफाजत का राज़े बानी, काबा की दुआ, इब्ने मरियम की बशारत का ज़हूर हुआ, कायनात आलम के उलझे हुए गेसों को संवारने वाला, तमाम जहान के बिगड़े निज़ामों को सुधारने वाला, यानी अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरोज़ हुए। हम इस मौके पर राहत साहब को शेर याद आता है कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी मैं आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ दूँ रहा तो आपके नाम की एक नींव नहीं लिख सकता। हजरात, आइए उस ज़ात पाक का पाकीज़ा जिक्र करें, अल्लाह ने जिसके जिक्र को बुलंदी अता की है, ज़मीन से लेकर आसमान तक, पहाड़ों से लेकर दरियाओं तक, खाक के ज़रों से लेकर आफ्ताब की किरणों तक, सितारों की महफिल से लेकर महताब की रोशनी तक, इंसान व जिन्नात से लेकर हुरों मलाइक तक, कलमे तैयबा से लेकर अज़ानों तक, दुरूदों से लेकर सलामों तक, नवाफिल से लेकर फराइज़ तक, गर्ज हर शय में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को अया कर रखा है। कुरान में इरशाद खुदावंदी है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंदी अता की है। हजरात, आप देखिए, जहाँ आपको अल्लाह का जिक्र मिलेगा वहीं आपको रसूलुल्लाह का भी जिक्र मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान के पारों में, चांद सितारों में, आंखों के खुमारों में, यारों के नज़ारों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिद्दीक़ की सदाकत में, फारूक की अदालत में, उस्मान की सखावत में, हैदर की खिलाफत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद की रिवायत में, मालिक की दरायत में, सुफियान की सकाहत में, नोमान की फुकाहत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मोमिन की अदाओं में, मौज़न की सदाओं में, मामूल हवाओं में और मशहूर फिजाओं में। हजरात, सोचिए, अल्लाह ने जिसके जिक्र को इतना बुलंद मर्तबा अता किया है, वो ज़ात कितनी बुलंद मर्तबा और आला मकाम होगी। हम अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करते हैं, हर सिमत रोशनी है, बड़ा एहतमाम है, तारीफ़े नबी में डूबा हुआ हर निज़ाम है, हम सीरत पढ़ रहे हैं खुदा के रसूल की, एहसास ठहर जा, ये अदब का मकाम है। अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह। मैं सना फिरदौस जनरल 6 से आपके सामने सीरतुन नबी पर तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।
سامعین حضرات، بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کے بنیادی عقیدے پر ہے کہ ہماری بقا و سلامتی کا راز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مضمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے، جس کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن نہیں۔ کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ سامعین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو عدل و انصاف کا پیکار تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ سامعین حضرات، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، دنیا کی ہر محبوب چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے رگوں میں خون کے بجائے عشق رسول دوڑنا چاہیے۔ پروردگار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے، ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حبشی رنگ کا غلام تیرا دلا لایا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا، نبی کی آمد فضائے شب پر نکھار آیا، چمن میں کلیوں کے رخ میں جو حسینو جمال آیا، مال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی یا نبی قربان کے جس سے شیطان بھی ہے ڈرتا، عمر کی جرت میں جو قربان کے جس سے شیطان بھی ہے ڈرتا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کے رہی ہے یہ باغ صفا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی
सब है, मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पर मुझे लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी। हम अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करते हैं। सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। जनाब सदर, सीरतुन नबी एक ऐसा मौजू है कि जिसको बयां किया जाए तो सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए, सारे समंदर के पानी को रोशनाई बना दिया जाए, ज़मीन से लेकर आसमान तक की खला को कागज़ बना दिया जाए। ये तो गुमा किया जा सकता है कि सारे कलम टूट जाएंगे, सारे समंदर का पानी खुश्क हो जाएगा, ज़मीन से लेकर आसमान तक की खला पुर हो जाएगी, मगर सीरत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाप भी पूरा ना हो सका। जिंदगी बीत गई कलम टूट गए, जिंदगी बीत गई कलम टूट गए, सीरत पाक का एक बाप भी पूरा ना हुआ। जनाबे वाला, आपके आमद से पहले अरब में जहालत का गुम अंधेरा था, इंसानी कदर नापैद थी, इंसान ग्रुप में तकसीम था, कत्लो गारत आम था, भाई भाई का ना था, इंसानियत अमन की मद्दाशी थी। फिर खुदाबंदी को जोश आता है कि वो मजलूमों को जुल्म व ज़बर से निकालने के लिए और उनके दुखों का मदामा करने के लिए आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजते हैं। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलीमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत में सबसे ज़्यादा सखी थे, जुरात में सबसे ज़्यादा कवी थे, बोलने में सबसे ज़्यादा शफीक थे। जो भी आपको देखता था मरगूब हो जाता था, क्योंकि हुस्न यूसुफ देख कर कट गई थी उंगलियाँ, क्योंकि हुस्न यूसुफ देख कर कट गई थी उंगलियाँ, लाखों ने जान दे दी मेरे मुस्तफ़ा के वास्ते। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब का तपता हुआ सहरा है, सूरज अपनी पूरी आफताब के साथ चमक रहा है। एक दूर आतिशी टीले पर एक शख्स खड़ा है, किसी के इंतजार में खड़ा है कि कोई कह गया है अभी लौट कर आऊँगा। 3 दिन हो गए वो शख्स लौट कर नहीं आया और 3 दिन हो गए शख्स वहाँ का वहाँ खड़ा है, मगर तीसरे दिन उस शख्स का वहाँ से गुजर होता है तो अपने वादे के इंतजार में खड़े शख्स को देखकर अपनी आंखें हैरत मदामत के साथ झुका लेता है, मगर मुंतज़िर शख्स के मुँह से यही कलमा अदा होता है कि ऐ शख्स तूने मुझे नाहक तकलीफ दी। जनाबे वाला, उबलते हुई सूरज की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहने वाला शख्स कौन है? जलते हुए अंगारों के साथ खड़ा रहने वाला शख्स कौन है? मोहम्मद है, मोहम्मद है। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपके सामने एक नात पेश करने वाला हूँ जिसका नाम है सुखल नगन में वो सबसे आला। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला, हुस्न दहन में अदब लक़ब में धर्म बरम में है सबसे आला। सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला। वही पैगंबर बड़े मुनव्वर जो है मुताहर सभी से बढ़कर, लबों का ज़ेवर हया की चादर, वफा के बेकर वो मुश्को अंबर से भी मुअत्तर, खुदाए अकबर से तो असहर, हर एक पैगंबर से है बुलंद तक अमल के मसदर, हुस्न में अनवर सिफत में अजहर, सभी के सरवर सभी के दिलबर, वो शाह अबरार आला किरदार, आलमे यार का है शाकार। सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में
ہے سب سے اعلیٰ میں ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کی افکار، ان کی اقرار، ان کے اطوار، ان کے اظہار، ان کے اسرار، ان کے رخسار، ان کے انوار، ان کی دیوار، ان کے بازار، ان کے گلزار، ان کے ہر یار، ان کی تلوار، ان کے دیدار. کہو بیمار ہوں میں نادان، کتنا بیکار ان کا ہی پیار مجھ کو درکار. حسین رنگت جمیل فطرت، عظیم نسبت کریم قدرت، علوم رفعت کمال عظمت، نسیم صحبت محیب ملت، بطی سنت شفیع امت، جلی سے برکت کھلی کے زینت، نئی مسربت فہیم الفت، عطائے قدرت دیدار امت، وفائے خلقت وفائے کی ہی بدولت ملی ہے نسبت، ملی ہے عظمت. السلام علیکم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina. Our heart said to us, go to Medina, our heart said to us, go to Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. دین یسر الدین آسان ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے. من غش فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اجتنبوا الغضب، غصے سے بچو. علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو. اللہ تعالی ہم تمام کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد نبینا بنور مدینہ، من مکہ حبیبی نور صدار مدینہ، من صلاة تتحلق صفات، یا وقت الرقل ماشی یشفال مامات. محمد نبینا بنور مدینہ، من مکہ حبیبی نور سطار مدینہ، من صلاة تتحلق صفات، یا وقت الرقل ماشی یشفال مامات. یا امام سنت للمسلمین، یا حبیبی یا محمد یا ابن عبداللہ، جب میں تیری صلاة من بر حبیبی مسکل کتم، الحیاتی وقت صلاتی بر اصلی ورا. محمد نبینا بنور مدینہ، من مکہ حبیبی نور صدار مدینہ، من صلاة تتحلق صفات، یا وقت الرقل ماشی یشفال مامات. السلام علیکم. آ
सवालात पूछने वाले हैं। तो फर्स्ट, कलमा तौहीद किसे कहते हैं? जिसे आंसर आएगा वो हैंड रेस करेंगे। कलमा तौहीद किसे कहते हैं? सही जवाब। सेकंड, चार बड़े फरिश्तों के नाम क्या है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। सही जवाब थी। 63 साल। सही जवाब। किस महीने में कुरान नाजिल हुआ? किस महीने में कुरान नाजिल हुआ? सही जवाब। हमारे 4 खलीफा का नाम क्या है? 4 खलीफा का नाम क्या है? फरहान आता नहीं क्या बोलते हैं? 4 खलीफा। जिसको जवाब मालूम है वहीं खड़े रह के जोर से बोलो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत अली। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। सबसे पहले किस सहाबी ने अजान दी? सही जवाब। आसमानी किताबों के नाम बताएं। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। उस गार का क्या नाम है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने जाते और वही नाजिल है? सही जवाब। अस्सलाम वालेकुम। बोतल खाली कर रही थी या पानी जाया कर रही थी? पानी तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है और हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए। कल क़यामत के दिन नियामतों का हिसाब होगा। कुरान करीम में है, सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिल। बेशक क़यामत के दिन तुमसे नियामतों के बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा पानी जैसी नेमत को हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए। शायद कोई आया है। राइका, देखो दरवाजे पर कौन है? कौन? सबर सबर। मैं रामी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे रामी नापी, आइए आइए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। बा फातिमा कहीं नजर नहीं आ रही? वो अंदर है, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। आप बैठिए। आपी, रामी नापी आई है, आपको बुला रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये शॉपर लेकर कहाँ जाने की तैयारी है? नहीं नहीं, कहीं की तैयारी नहीं। वो हुआ यूँ कि हमारे घर का फ्रिज खराब हो गया और ये चीज़ें बगैर फ्रिज के खराब हो जाती हैं, इसलिए मैं आपके घर लेकर आई थी। क्या आप कुछ दिनों के लिए ये चीज़ें आपके घर फ्रिज में रखेंगी? जी जी, क्यों नहीं, लेकिन मैं पहले अम्मी से पूछ लूँ। जी जी ज़रूर। अम्मी अम्मी, रामीन आई है। रामीन का फ्रिज खराब हो गया है। क्या हम कुछ दिनों के लिए रामीन की चीजें अपने फ्रिज में रख सकते हैं? जी जी बेटा, बिल्कुल रख लो। दूसरों के काम आना तो अच्छी बात होती है। जी, अब आप आपकी चीजें हमारे फ्रिज में रख सकती है। घर का फ्रिज सुधर जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो खाने की चीजें लग रही है, मजेदार।
रायका रायका ये क्या कर रही है आप? मैं पानी पी रही थी। अच्छा, ये चॉकलेट आपके मुंह और हाथ पे कैसे लगी, क्या आप बताना पसंद करेंगी? मैं रायका झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। दूसरी बात, ये रामीन की अमानत है हमारे पास। एक हदीस का मफहूम है कि वो हम में से नहीं जो मोमिनों की अमानत में खयानत करे। आपी अपना मैं अमानत में खयानत करूंगी। आपी अमानत में खयानत ये क्या होता है? किसी ने अपनी चीज हमारे पास रखी है वो अमानत है, और उस अमानत को बगैर इजाजत इस्तेमाल करना वो खयानत है। आपी अपना मैं अमानत में खयानत करूंगी, ना मैं झूठ बोलूंगी। आप जो चॉकलेट आपने खाई है वो वापस भी लाना है। जी इंशाल्लाह मैं ऐसा ही करूंगी। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक हदीस पाक का मफहूम है, मोमिन कभी झूठा नहीं होता। और ना हमें अमानत में खयानत करना चाहिए। और अल्लाह की दी हुई नेमतों का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 63 साल थी। पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई। पैदाइश के बाद 7 दिन तक हज़रत सुबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पिया। 7 दिन बाद हज़रत अलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। 2 साल बाद हज़रत अलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लाई। मक्का में बीमारी की वजह से दोबारा उन्हें यहाँ लाई। 4 साल की उम्र शरीफ में अपनी वालिदा आमिना के पास आए। 6 साल की उम्र शरीफ में माँ और 8 साल की उम्र शरीफ में दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। 11 साल की उम्र शरीफ में मामूली हुज्जत पर बकरियाँ चराई। 12 साल की उम्र शरीफ में मुल्क शाम का सफ़र किया। 15 साल की उम्र शरीफ में हर्बुल फज्र जंग में शिरकत की। 25 साल की उम्र शरीफ में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ। 28 साल की उम्र शरीफ में हज़रत ज़ैनब की पैदाइश हुई। 29 साल की उम्र शरीफ में हज़रत रुकैया की पैदाइश हुई। 30 साल की उम्र शरीफ में हज़रत कुलसुम की पैदाइश हुई। 31 साल की उम्र शरीफ में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश हुई। 34 साल की उम्र शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश हुई। 35 साल की उम्र शरीफ में हजर अस्वद के बारे में फ़ैसला किया। 36 साल की उम्र शरीफ में हज़रत इब्राहीम की पैदाइश हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद थे। 36 से 40 साल की उम्र शरीफ में गारे हिरा में इबादत की। 40 से 41 साल में वही नाजिल हुई और नबूवत मिली। 43 साल की उम्र शरीफ में सफ़ा पहाड़ी से कौम को ईमान की दावत दी। 45 साल की उम्र शरीफ में हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। 47 साल की उम्र में कुरैश की तरफ से बायकाट हुआ। शुएब अबू तालिब में कैद हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल के थे, अबू तालिब और हज़रत खुतैजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हुई। जब 51 साल के थे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ और मदीने में 6 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 52 साल की उम्र शरीफ में मदीने में 12 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। 53 साल की उम्र मुबारक में 53 आदमियों ने मदीने में इस्लाम कबूल किया। 54 साल की उम्र शरीफ में मदीने की तरफ हिजरत की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद दी। 55 साल की उम्र शरीफ में जंग बदर हुई और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ। छप्पन साल की उम्र शरीफ में जंग ओहद हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ था। 57 साल की उम्र शरीफ में 70 हाफिज़ कारी रज़ियल्लाहु अन्हा को काफिरों ने धोखे से शहीद किया। जंग खंदक हुई और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ। 59 साल की उम्र शरीफ में हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत
میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا. 59 سال کی عمر شریف میں 7 سال کی عمر مبارک میں عمرے کی قضا کی. بادشاہوں کو ایمان اسلام کی دعوت دی. 61 سال کی عمر شریف میں فتح مکہ اور جنگ حنین ہوئی. 62 سال کی عمر شریف میں جنگ تبوک اور مسلمانوں نے حج ادا کیے. 63 سال کی عمر شریف میں جو زندگی کے آخری ایام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا اور اس موقع پر حج الوداع کا خطبہ بھی دیا. بیمار ہوئے اور مدینہ شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حاضری میں وفات پائی. وہی آرام فرما ہوئے. السلام علیکم. How is beautiful Medina, very, very good Medina, my choice Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Our heart said to us, go to Medina. Our heart said to us, go to Medina. Very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. دین یسر دین آسان ہے. مفتاحُ الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے. من غش فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اجتنبوا الغضب، غصے سے بچو. علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو. اللہ تعالی ہم تمام کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد نبینا بنور مدینہ من مکہ حبیبی نور صدار مدینہ من صلاة تتحلق صفات یا وقت الکل ماشی یشبال ممات. محمد نبینا بنور مدینہ من مکہ حبیبی نور صدار مدینہ من صلاة تتحلق صفات یا وقت الکل ماشی یشبال ممات. یا امام یا
ساكتا والحياة والصلاة والرسول وراء محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلاة وتهلق صفاته يا بخت اليوماشي يشفع ممات. السلام عليكم. अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, बस एक चीज़ ये है कि हमें वो अपनी ज़िंदगी में लाना है क्या नहीं? अभी हम लोग सोच क्या बोलते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सलाम को आम करो, सलाम सलामती है। तो कितने बच्चे इसमें से घर जाके सलाम करते हैं और आते वक्त घर से निकलते वक्त सब करते, सच बोल रहे ना? सच, हाँ ठीक। तो ये सलामती है घर जाकर, और सबको सलाम करना चाहिए, पहचान वाला हो क्या गैर पहचान के हो या नहीं पहचान के हो, सबको सलाम करना चाहिए। ये और सबसे बड़ी बात है झूठ नहीं बोलना, किसी को मारना नहीं। क्लास में लड़ते लोग है ना, हम रोज क्लास में लड़ते, कौन? हाँ बॉयज सब लड़ते। तो आज ये तय करो कि हमको लड़ना नहीं है, ठीक है? लड़ेंगे क्या? कंप्लेन आएंगे एच एम इसके पास, एच एम मैम के पास, टीचर के पास कंप्लेन आएंगे। और बुरी बात नहीं करने का, अच्छी बात करने का, अच्छी बात सीखिए आप, ठीक है? और शेयर करना सीखिए। कितने लोग शेयर करते टिफिन? सब हाथ उठा रहे, बाकी लोग नहीं लाते क्या फिर टिफिन? आपके टिफिन में खाते क्या? शेयर कर क्या क्या किए? एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, एक्सचेंज ये अच्छी आदत है। और जिनके टिफिन नहीं लाते जो बच्चे, उनका बेटा टिफिन शेयर करना, अपनी चीज़ देने को होना, देने से कम नहीं होता। ये हमारे आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की तालीम है। ये तालीम प्रैक्टिकल करिए, अपने अंदर लाइए, किसी को बुरा मत बोलिए, है ना? मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा। पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, अपना हाथ अपने हाथ पर रखिए और बोलिए मुझसे सब अच्छे। बोलो बोलो मुझसे सब अच्छे। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? आपसे अच्छे बोलना अच्छा लग रहा? बार लगता है या बार? ईगो को ठेस पहुंचती, मुझसे सब अच्छे। तो ये चीज आने को होना है कि नहीं, मैं अच्छा हूँ लेकिन मुझसे भी अच्छे हैं। कॉम्पीट करो अच्छी चीज में, एजुकेशन में, स्टडी में, है ना? नहीं तो इसने पेन मारा, उसने पेंसिल मारा, ये नहीं होना, ये कंपटीशन नहीं होना। करेंगे क्या ऐसा? तो ये चीज होने को होना कि मुझसे सब अच्छे हैं। ईगो को ठेस पहुंचती ना तो आदमी को यकीन होता। तो ये चीजें आने को होना, समझ रहे ना आप लोग? हाँ, तो इस चीज में कॉम्पीट करो। एग्जाम में घर से कंप्लेन नहीं आने को ना टीचर के पास, तो पढ़ नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, टीचर ने घर पे कंप्लेन नहीं करना। तो आज अच्छी चीजें हमको ले जाना है और समाज में, सोसाइटी में उसको आम करना है ना? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेंगे तो सारी दुनिया हमारे साथ आ जाएगी। ये बोलकर मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसको प्रैक्टिकल लेंगे इंशाअल्लाह। जिन बच्चों ने सही जवाब दिए थे वो ईमानदारी के साथ
today we are gathering here on account of the 12th Rabiul Awwal. The 12th Rabiul Awwal was the day when the nameless people got the name as a Ummat-e Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. And this was the day when we got the mark toward the success, when we got the path toward the destination. And it was the day when we got the cloud of a mercy on the desertic land. There was a time in the Gulf countries where the human was not considered as a human, and murder, injury and other crimes was not considered as a crime. And that time Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam arrived on the world as a piece of a mercy. And this was the same day, therefore we celebrate. I do not want to use the word celebration for the 12th Rabiul Awwal because that day have associated with the mixed feeling. So we can say that we are taking a knowledgeable session so that we could become knowledgeable about our religion. I just on that auspicious day, I just want to give a message to all my students. If you will follow strictly to the Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam and his sunnahs, so we all human will be the model for the all humans, and our religion will be the best religion of the world. Inshallah. जज़ाकल्लाह. मैं इस शेर के साथ अब इदारा तशक्कुर को a very good morning, a very good afternoon to all present here. It gives me immense pleasure to deliver vote of thanks for this event. All dignitaries here assembled here. I would like to thank our chief guest, Fahim Kidwai sir, Ibrahim sir, Dr. Ibrahim sir, HMM, and all management members who honored this program with their inspirational thoughts, valuable presents. I would like to thank our beloved principal ma'am and in charge of this program, Fawzia Miss, and all respected teachers and non-teaching staff, students, participants, volunteers, and last but not the least, our audience for making this program as a grand success. माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, है रोक टोक इनकी हक में तुम्हारे नेमत. जज़ाकल्लाहु खैर. Once again, thank you. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.